Okay, students, now we started our next topic of chapter 14 atomic physics. This is total energy of electron in nth orbit. If electron moving in orbit, then it have two types of energy. First one is the kinetic energy and second one is the potential energy. We know very well that due to the motion it have the kinetic energy, and by changing their position continuously it have the potential energy. So we say that the total energy is the sum of the kinetic energy and the potential energy. So firstly we evaluated the kinetic energy for the nth orbit. तो nth ऑर्बिट के लिए जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो द सिंपल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज k इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बट फॉर द nth ऑर्बिट वी कैन राइट इट kn इक्वल्स टू हाफ ऑफ mvn स्क्वायर. ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन करेगा. सर्कुलर मोशन करेगा, देन फॉर सर्कुलर मोशन बोर गिव्स इट्स first postulate in which he says that the centripetal force for required of circular motion is equals to the electrostatic attraction force between the electron and the nucleus. So we say right here mvn square upon rn, this is the centripetal force, equals to the kze square upon rn square. This is your attraction force, this is the electrostatic attraction force. For this equation we evaluate the value of mvn square. So here the mvn square equals to this rn, cancel out by this, then we get ze square upon 4 pi epsilon naught rn. Now we put this mvn square value in this equation and we get the kinetic energy value. Then kn equals to half mvn square, then this is ze square upon 8 pi epsilon naught rn. So this is your kinetic energy. Now we find the potential energy, because the sum of kinetic and the potential energy of electron in an orbit is total energy. तो किसी भी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है. तो हियर वी इवैल्यूएट द काइनेटिक एनर्जी, नाउ वी इवैल्यूएट द पोटेंशियल एनर्जी. सो सी हियर, we studied in our previous classes that the potential energy for the two charge system is kq1 q2 by r. This is the potential energy for the two charge system. So now the potential energy of electron at rn distance from nucleus is, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? un equals to k q1. q1 is the z is the charge of nucleus. अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस e and the orbital radius is rn. So now here we have this is your potential energy. Okay, so this is your kinetic energy and this is your potential energy. Now we evaluated the total energy, net energy. Now the total energy and total energy En equals to Kn plus Un. What is the value of Kn? Plus Un is okay. So when we solve it, then we get this is your total energy. En equals to minus ze square upon 8 pi epsilon naught rn. ओके, अब यहां पर मैं इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, जैसे rn है तो rn की वैल्यू मुझे पता है. rn की वैल्यू क्या होती है? सिंस rn इक्वल्स टू epsilon naught n square h square upon pi m z square. This is the value of Rn. So now we put this value of Rn in equation 3. So put
वैल्यू ऑफ आर एन इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हम पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ आर एन। तो देखिएगा क्या आता है, ई एन इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ आर एन देन ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा आपका पाई एम जेड ई स्क्वायर देन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू। तो हियर व्हेन वी सॉल्व इट देन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन ई एन इक्वल्स टू माइनस एम ई 4 माइनस एम ई 4। ओके, दिस इज जेड स्क्वायर एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर and 1 by n square. This is the value of En, where n equals 1, 2, 3 and so on. n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, 2, 3 and so on. This is the principal quantum number. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर इन सब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। तो इसे किसी न्यू कांस्टेंट के इक्वल हम मान लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो En इक्वल्स टू r डैश z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ओके, तो वह r डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर, या r डैश अगर मैंने लिया है तो हियर r डैश इक्वल्स टू m e 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये छोटी मतलब बहुत सिंपल डेरिवेशंस है, सिंपल स्टेप टू स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये सारे जो वैल्यूज हैं, सारे जो इंटीजर्स हैं, ये सब क्या हैं, कांस्टेंट। और जब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे r डैश की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पर, m की वैल्यू लिखी 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, e की वैल्यू लिखी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल 4 अपॉन 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 का स्क्वायर, h की वैल्यू लिखी 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू गेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो वी गेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इस वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में, तो देखिएगा फॉर हाइड्रोजन ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल्स हम क्या लेते हैं 1। तो ई एन कितना हो गया अब आपका माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो दिस इज द nth ऑर्बिट एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये और हर जगह काम में आएगा। अब यहां पर इस एनर्जी में जो नेगेटिव साइन आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमेशा हम कौन से सिंबल को यूज में लेते हैं, नेगेटिव सिंबल को। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये आपके यहां पर अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अलग अलग ऑर्बिट के लिए हम इजीली एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास में जो फाइनल फॉर्मूला है वो फाइनल फॉर्मूला क्या है, ई एन इक्वल्स टू दिस वन nth ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट वी टेक द n इक्वल्स 1। इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए जो एनर्जी आती है वो आती है आपकी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब सेकेंड लेते हैं हम n इक्वल्स टू, ये कहलाती है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें जब निकालोगे आप एनर्जी तो E2 इक्वल्स टू
तो दिस इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से n इक्वल्स 3 पुट कर दीजिए, तो n इक्वल्स 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 13.6 बाय 9 इक्वल्स टू माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, n इक्वल्स 4 पुट कर दीजिए, तो फॉर n इक्वल्स minus 13.6 upon 16, then we get minus 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लेते हैं हम इसके अंदर कि nth ऑर्बिट के अंदर जब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं तो nth ऑर्बिट में फॉर nth ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी kn इक्वल्स टू माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ kn। ठीक है, जस्ट इसका ट्वाइस होता है, तो ट्वाइस होगा तो क्या होगा 27.2 बाय n स्क्वायर ev, क्योंकि मॉड्यूलस में जाते ही ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 27.2 ev। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो इन ग्राउंड स्टेट फॉर n इक्वल्स 1, तो E1 पे कितना आ गया आपका, सॉरी K1 पे कितना आ गया आपका माइनस 13.6 ev और U1 कितना आ गया आपका 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिलेशन होता है आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां तक स्टडी कीजिएगा बेटा, इसके बाद में हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को स्टडी करेंगे और बोर्स थ्योरी को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।